Okay, so let's start with a new topic, respiration and energy transfer. Abhi, when you talk about respiration, okay, now this is something you have been learning in your lower classes also, right? जैसे human physiology point of view अगर देखते हैं तो digestive system is something we learn first. पहले वही पढ़ते हैं, right? According to that, even respiratory system is something you learn along with that. Okay. Now here, when you're talking about respiration and energy transfer, it is not exactly only the respiratory system of human beings. यहाँ पे हम respiration पढ़ रहे हैं in terms of physiology of the cell. Okay. तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं तेको पूछता हूँ, टेल मी व्हाट इज रेस्पिरेशन. बोल, बिकॉज मैं जानता हूँ मोस्टली क्या आंसर मिलने वाला है, सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज रेस्पिरेशन. समथिंग वेरी सिंपल. हाँ मुझे लगा ही था. बोल बोल. ब्रीदिंग प्रोसेस. ओके, व्हाट इज ब्रीदिंग. Inhaling oxygen, exhaling carbon dioxide. एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके देख ले. सी, ये जो तूने अभी बताया ना कि ब्रीदिंग. ओके, फर्स्ट थिंग व्हेन यू से ब्रीदिंग. ब्रीदिंग ना, इनहेलिंग एयर. गॉट इट. याद आया ना. राइट. यस, सी व्हेन यू टॉक अबाउट ब्रीदिंग, ओके, जब हम लोग बोलते हैं ना कि वी इनहेल ऑक्सीजन, वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इजी टर्म्स में एकदम लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू में से बोल देते हैं. बट द करेक्ट थिंग इज व्हाट, कि व्हेन यू आर ब्रीदिंग यू आर नॉट टेकिंग ओनली ऑक्सीजन ना. अपने नाक में कोई फिल्टर लगा हुआ है कि अपने आसपास के जो हवा है उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर अलाउड है, बाकी को नहीं लेना है. ऑफ कोर्स नॉट, राइट. तो वी आर जस्ट ब्रीदिंग द एयर दैट इज देयर अराउंड अस एंड उसमें से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते. Okay. Similarly, the air that you give out while breathing, exhale, that contains mainly carbon dioxide. So ये breathing हुआ. But my question was, what is respiration? वो अलग है. This is one part of breathing, one part of respiration. जो superficial respiration करके बोल सकते हैं, exchange of gases. Okay. Respiration जो है, it is a process, a reaction which is taking place inside the cell. कि जैसे ब्रीदिंग करते वक्त हवा अंदर लिया, उसमें ऑक्सीजन था, that oxygen goes to every cell of the body. What happens to that oxygen in every cell before it is converted to carbon dioxide? That reaction is respiration. समझा ये क्लियरली. सो नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, सो आंसर शुड नॉट बी ओनली ब्रीदिंग. एंड किसी ने पूछा व्हाट इज ब्रीदिंग, so don't say inhaling oxygen, exhaling carbon dioxide. Got it? Okay, it is inhaling air containing oxygen, exhaling air containing carbon dioxide. Okay, now in 12th standard you are having a different lesson called respiration and circulation. साथ में हम. So there you will be learning in detail about the human respiratory system. उसके सारे parts, उसका physiology पूरा डिटेल में हो. Here in 11th standard when you are learning about respiration, you are learning the physiology part of it. तो मतलब हम लोग respiration पढ़ रहे हैं, but which is not applicable for only human beings. It is across every living cell because हर living cell को respiration तो करना ही है. Getting it? Now tell me one thing. Why does respiration take place in the living cells? चाहे वो बैक्टीरिया हो, yeast हो, या फिर कोई बड़ा plant, animal या human being. Why does respiration take place? Energy obtained करने के लिए. Okay. So if I ask you this way, why do we eat food then? इसको बोलते हैं checkmate. फूड को मतलब मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज. वाह, वेरी गुड. साइंटिफिक राइटिंग करेगी.
Yeah, that is correct. Okay, see, when you eat food, if you think from human beings point of view, okay, when we eat food, we are having complex macronutrients, carbohydrates, proteins, fats हम खाते हैं. And when you eat that through our alimentary canal, it is getting digested. तो digestion होने के बाद बनते हैं उसके digested products, the micronutrients. So you are getting glucose, amino acids, fatty acids. अब उन ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन. मतलब यू कैन इमेजिन कि 3 अलग अलग सिस्टम्स हैं. फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू 3 डिफरेंट सिस्टम्स, द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्किंग टुगेदर. कि डाइजेस्टिव सिस्टम के वजह से हर सेल के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से एवरी सेल इज गेटिंग द ऑक्सीजन व्हाइल ब्रीथिंग. And circulatory system is the one which is carrying that oxygen in the blood, transporting these nutrients and oxygen to every cell of the body. अभी ये ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेगा इन न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगा. दैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. समझा? तो द आंसर व्हाट यू गेव इज करेक्ट कि व्हाई डज रेस्पिरेशन टेक प्लेस? So that to obtain the energy. ठीक है? तो अभी ऐसा देख, I'll show you this way कि respiration का एक रिएक्शन अगर लिखा जाए तो it is like the most common substance upon which respiration takes place. Okay? वो है ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हुआ? C6H12O6. You remember, याद है ना फॉर्मूला ग्लूकोज का? Okay, now this glucose is acted upon by oxygen, that is O2. ठीक है? When this reaction takes place, what happens? अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, CHO. तो when this reaction takes place, this hydrogen gets removed. वो जो हाइड्रोजन है वो उसमें से निकल जाएगा. तो बचा क्या? कार्बन, ऑक्सीजन. तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, एंड दिस हाइड्रोजन विच इज रिमूव्ड गेट्स एडेड टू द ऑक्सीजन. सो यू आर गेटिंग, क्या मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? When hydrogen, you are getting water. Yes, because hydrogen निकल के ऑक्सीजन के साथ जाना. Of course you have to balance the reaction. Okay, हाँ. समझ रहे? तो यहाँ पे क्या हो गया? Glucose is oxidized and you are getting carbon dioxide and water. ये जनरल रिएक्शन रेस्पिरेशन का. ठीक है? So here in this process, जब ये breakdown हो गया, now glucose is a macromolecule. जब इस macromolecule का breakdown हुआ, तो there is a good amount of energy given out. Okay, there is a high amount of energy given out. जो यहाँ पे E करके लिखता हूँ. Now in a living cell, whenever this reaction takes place and whenever the energy is given out, this is given out in 2 different forms. Can you tell which are the 2 forms of energy released? सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी जो निकलेगा वो 2 फॉर्म्स के होंगे. कौन से 2 फॉर्म्स? मतलब 2 टाइप, मतलब एरोबिक और एनारोबिक. नहीं, वो तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हो गया. टाइप In school level science you have learnt about forms of energy. Sound energy, heat energy, light energy, kinetic energy, mechanical energy. याद है? हाँ. तो वैसे यहाँ पे कौन से 2 फॉर्म्स आएंगे? मैकेनिकल. It is क्या? chemical energy and हाँ. heat energy.
Each. Okay. ओके, दो टाइप के एनर्जी रिलीज होते हैं। ओके, अभी जब एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन हुआ और ये रिएक्शन हुआ तो हीट एनर्जी रिलीज हुआ। दैट इज द रीजन व्हेन एवरी सेल ऑफ द बॉडी it carries out this respiration process, the cell gets slightly heated up. So if you consider a living being, okay, a human body or any other animal body, तो उसका cells, उसका जो शरीर होता है वो warm होता है, we call it a body heat. That body heat is because every cell of the body is undergoing respiration. तो ये heat जो है ये सिर्फ radiate होके निकल जाता है। Imagine a dead body. We say it is cold. Okay, डेड बॉडी को कोल्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज डेड बॉडी में देयर इज नो रेस्पिरेशन गोइंग ऑन, रेस्पिरेशन बंद हो चुका है, तो नो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ऐसे करके हम लोग को याद। बुखार में ज्यादा क्यों गर्म हो जाता है? बुखार में गर्म होता है नॉट बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन द रेस्पिरेशन। बुखार में गर्म हो जाते हैं बिकॉज वो शरीर का एक मैकेनिज्म है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का या किसी का, ठीक है, तो शरीर का अपना मैकेनिज्म है कि when there is a pathogenic infection in our body, the body normally automatically raises the temperature so that the pathogens cannot function much. So to some extent वो फीवर एक तरह से अपने लिए फायदा करता है कि पैथोजेंस के एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हैं, बट ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इसका मतलब ये नहीं कि बुखार आ गया तो एंजॉय करके बैठ जाना है। ओके, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ओके, इट इज द बॉडीज ओन मैकेनिज्म टू इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द पैथोजेंस। तो वो उसके वजह से हो रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन। इनफैक्ट बुखार हो गया या वीकनेस वगैरह आते हैं तो रेस्पिरेशन इनफैक्ट रिड्यूस होता है उस टाइम पे। दैट इज व्हाई यू फील टायर्ड एंड वीक ना। ओके, बिकॉज एनर्जी कम निकल रहा है। ये एनर्जी जो निकल रहा है, दिस इज द एनर्जी वी आर यूजिंग फॉर आवर मेटाबॉलिक वर्क। ओके, इमेजिन अ पर्सन एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, व्हाई इज दैट पर्सन वीक? उसको क्यों सलाइन चढ़ाते हैं? बिकॉज उसका मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो गया है। एंड उसको किस तरह का खाना देते हैं हॉस्पिटल में? समथिंग विच इज इजीली डाइजेस्टिबल, समथिंग विच इज इंस्टेंट एनर्जी। हाँ, वहां पे कोई पिज्जा बर्गर लाके देगा तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। गेटिंग इट? तो तभी क्या हो जाता है, ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि ज्यादा ग्लूकोज अगर मिलेगा उसको तो रेस्पिरेशन का रेट उतना बढ़ेगा। तो दिस इज द एनर्जी दैट इज नीडेड बाय द पर्सन। ओके, तो ये जो केमिकल एनर्जी निकल रहा है इन दिस प्रोसेस, दैट केमिकल इज नथिंग बट ATP। यू नो ATP फुल फॉर्म क्या है बताओ? ATP को क्या बोलते हैं? डैश ऑफ द सेल। हाँ, एनर्जी, करेंसी। वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, करेक्ट। तो ATP क्या है एंड उसी को क्यों एनर्जी करेंसी बोलते हैं? व्हाई नॉट एनी अदर मॉलिक्यूल? क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी मिलता है। तो क्या है उस ATP में जिससे एनर्जी आ रहा है? इट्स लाइक एक 2000 रुपए का नोट और एक कागज का टुकड़ा, फर्क तो होगा ही ना, दोनों पेपर का ही बना है तो। तो ऐसे इसमें क्या चीज है? एडेनाइन। इट इज एडेनोसिन। हाँ, एडेनोसिन करेक्ट, ट्राई फॉस्फेट। वेरी गुड, करेक्ट, क्या बात है। तो ATP इज एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, तो ATP मॉलिक्यूल को अगर हम देखते हैं तो इट इज लाइक देयर इज एन एडेनाइन रिंग। एडेनाइन मॉलिक्यूल का एक रिंग है। ओके, एंड इसके साथ एसोसिएटेड है फॉस्फेट ग्रुप PO4 माइनस, वी राइट एज P। तो ट्राई फॉस्फेट है, तो मतलब कितना फॉस्फेट हो गया? 3, लाइक दिस। ओके, तो फॉस्फेट नंबर 1 2 3। तो ATP मॉलिक्यूल में the bond which is present between the second and the third phosphate, this one, this is a very high energy bond.
तो जितना ज्यादा हाई एनर्जी है उतना उसको ब्रेक करने पे वो एनर्जी रिलीज होगा। तो व्हेन द एटीपी मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन, इसको एनर्जी करेंसी हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज व्हेन दिस हाई एनर्जी बॉन्ड between the two phosphate, the second and the third phosphate is broken down, you are getting approximately 7.3 kilocalories of energy. एनर्जी का यूनिट कैलोरीज में होता है या किलो कैलोरीज में। तो एक एटीपी मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से 7.3 किलो कैलोरीज। ओके, so that is the amount of energy you are getting from one ATP. इसलिए जो ATP का ब्रेकडाउन भी है वो रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं? We write ATP, okay, and when it is broken down you get ADP plus IP. ओके, जब ये टूट जाएगा बॉन्ड तो बचा क्या? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP, एंड ये जो फॉस्फेट सेपरेट हो गया दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो दिस इज एबल टू गिव यू 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर, दैट इज गिविंग यू टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, केमिकल एंड हीट। हीट एनर्जी विच इज लिबरेटेड वो रेडिएट होके सेल से निकल जाते हैं। So when all the cells in a tissue or an organ, when they are respiring together, so there is a good amount of heat energy released. Okay, वो उसका body heat है जो सिर्फ रेडिएट होके निकल जाता है। बट बाकी का जो केमिकल एनर्जी है, ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, these ATP molecules are stored within the cell so that when the cell is carrying out any other metabolic activity, वो एनर्जी यहाँ ये एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करके उसके लिए एनर्जी तैयार करते हैं। That is the reason why this respiration takes place. Now imagine a situation when you have not eaten anything say for 3 to 4 days. ज़्यादा हो गया बट सोच ले कि 3-4 दिन कुछ नहीं खाया, पानी पिया बस। So how will you feel at the end of the 3rd or 4th day? चलने भी नहीं होगा। Yes, you will be एक very दिन में चलने नहीं होगा। exactly, yes, you will be very very tired and कुछ काम करने बोलेंगे तो होगा ही। But then suddenly at the end of 3 yes, at the end of 3 days you are given a nice food, पूरा feast मिल गया खाने को suppose, हाँ। so you will attack the food, correct, you will have it nicely, and जैसे ही खा लिया थोड़ी देर में क्या हो जाता है फिर? हेवी लगता है, but then you start getting energy, no? हाँ, एनर्जी एकदम से एनर्जी आ जाता है, फिर काम करने के लिए तैयार। मतलब अपने शरीर में हुआ क्या है ऐसे टाइम पे कि your reserves of food, your reserves of glucose in the cells had got over. हाँ, वो वैक्यूल्स में जैसा वो होता है एक्टिवेट हो प्लांट्स गया। हाँ, ओके, पानी दिया मिल जाता है। हाँ, ओके, तो देन व्हाट हैपेंस कि देन देयर इज एन एक्स्ट्रा रिजर्व व्हिच इज एडेड, जो खाना खाया उससे, बिकॉज अपने को न्यूट्रिएंट्स का दूसरा कोई सोर्स तो है नहीं। वी डोंट हैव रूट हेयर कि हमने सॉइल में हाथ डाला तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, राइट? वी कैन नॉट गो एंड स्टैंड इन द सनलाइट एंड से कि चलो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। गेटिंग इट? बट ओके, बहुत लोग रहते भी है ना वो नवरात्रि का 9 दिन, हाँ करते हैं। सी अपनी तो प्रॉब्लम नहीं होता। as far as these beliefs and all are concerned, तो साइंस में तो हम उसके बारे में डिबेट कर ही नहीं सकते। फर्स्ट थिंग, ओके, इट इज कि उसका किसी किसी का बोलते हैं ना कि मेंटल स्ट्रेंथ वगैरह इतना रहता है, एंड इट्स लाइक व्हेन दे डू फास्टिंग एंड ऑल, इट इज नॉट कि सिर्फ पानी पी रहे, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, है ना? फास्टिंग बट के अलग कुछ अलग लोग तरीके। निर्जल उपवास भी रहता है, हाँ वो भी करते हैं, बट वो तो एक क्या दिन हो? से ज्यादा नहीं कर सकते, पूरा 9 दिन निर्जला नहीं कर सकते। नोबडी कैन डू दैट, देन इट इज टू मच ना। निर्जला का मतलब है कि पानी भी हाँ, नहीं पीने का। हाँ वही। ओके, इवन अगर बाहर काम पे नहीं गए, घर पे ही बैठे रहे, तो भी बैठे बैठे भी तो एनर्जी यूज हो रहा है ना, या बट पूरा मेटाबॉलिक दिन पानी एक्टिविटीज आर नहीं गोइंग पीना ऑन, था। या हाँ, वो ऐसे हैं। करवा चौथ में पूरा दिन पानी भी नहीं पीते और कुछ खाते भी नहीं। एग्जैक्टली, यस, एंड देन रात को फिर पानी पी के शुरू करते हैं। अलग अलग कल्चर्स में हाँ, अलग अलग तरीके के फास्टिंग्स हैं, एंड कुछ कल्चर्स में फास्टिंग ऐसा होता है कि बहुत कुछ खाते हैं उसमें।
फास्टिंग के टाइम पे, है ना? हाँ यस, वो वो साबूदाना का खा साबूदाने का लेते हैं। खिचड़ी। यस, इवन मतलब मैंने सुना फ्रेंच फ्राइज भी खा लेते हैं। ओके, पोटैटो वेफर्स खा हाँ हाँ लेते हैं। वो पोटैटो वेफर्स भी। हाँ, तो इट डिपेंड्स, बट इट्स ना, आइडियली अगर साइंटिफिकली बोला जाए, कीपिंग ऑल दिस बिलीव्स असाइड, फास्टिंग का कैसा होना चाहिए कि पूरी तरह बिना कुछ खाए पिए तो नहीं रहना चाहिए फास्टिंग। देयर शुड बी हाँ सम सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट जूस पी लिया, ओके, या समथिंग हाँ वेरी लाइट, तो भी ठीक है कि मतलब सेल को कुछ तो मिल रहा है कंटेंट, rather than not getting anything at all. ओके, इसलिए हाँ इवन मुस्लिम कल्चर में भी जो रमजान का महीना आता है उनका, हाँ when they do the fasting sunrise to sunset, ओके, तो पूरा दिन पानी भी नहीं पीते, कुछ नहीं होता है, बट when they open the fast it's not कि सडनली एकदम वो फीस्ट करना शुरू करते, बिकॉज एकदम गैप के बाद सडनली भी बहुत कुछ खा लिए तो भी नॉट, इट इज नॉट गुड। हाँ So that's why they first have a glucose source. वो लोग डेट्स हाँ खाते वो हैं, खजूर फ्रूट्स खाते खाते हैं। हैं, एग्जैक्टली। ओके, तो उससे क्या हो जाता है कि सेल को थोड़ा सा एक्टिवेशन होने का मौका मिलता है, एंड द बट बॉडी फिर ये नहीं टिश्यूज बिकम लगता प्रिपेयर्ड। क्योंकि फिर वो लोग क्योंकि खजूर वो सब खाने के बाद वो लोग मीट इंटेक करते तो ऐसे फास्ट के बाद तुरंत से हेवी हेवी हाँ, नहीं होता होगा क्या? सी डिपेंड्स ना, अभी कि किसी किसी को तो आदत भी हो जाते हैं, किसी को एकदम आदत नहीं रहता, तो दे माइट हैव इट लेस, एंड सबका डाइट का कैपेसिटी वगैरह सब अलग अलग है ना। अभी हाँ कुछ लोग नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर देखेगी तो कुछ लोगों का रहता है कि थोड़ा सा भी खा लिया तो एकदम ऐसा पेट फुल, इसके ज्यादा नहीं खा हाँ सकते, एंड कुछ लोग रहते हैं जो गपागप इतना खाने के बाद भी 2 घंटे में भूख लग जाते हैं। राइट, so it is, हाँ that is called as appetite. So हाँ the amount of appetite differs in various ways. It differs from one person to another. It depends upon the climatic condition. अभी गर्मी के मौसम में हम लोग बहुत ज्यादा खाने का मन नहीं करते, लेकिन ठंडी का मौसम हो हाँ जैसे अभी चल रहे हैं तो वी फील लाइक हैविंग मोर फूड। इसका भी एक रीजन हाँ है कि जैसे अभी एकदम अच्छा खासा ठंड का मौसम है, तो व्हेन यू हैव मोर फूड देयर इज मोर ऑफ दिस रेस्पिरेशन गोइंग ऑन विद इन द सेल। हाँ तो ज्यादा रेस्पिरेशन होगा तो ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगा, तो सेल्स हाँ को वार्मथ मिलेगा, तो ज्यादा खाएंगे तो अंदर से गर्माहट मिलता है, तो ठंडी इसलिए के मौसम में फॉरेन भी में सब लाइक लोग इट। ज्यादा चीज खाते हैं। हाँ, बिकॉज फैटी फूड्स वगैरह कैसे ज्यादा डाइजेशन करके हाँ ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, बट यही इमेजिन कर एकदम हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, बहुत आएगा गर्मी, ना अभी अप्रैल में। हाँ, तो तभी ज्यादा खाए नहीं जाते, है ना, बिकॉज वो वही। बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एंड और अगर सेल्स के अंदर हाँ से ज्यादा हीट निकलेगा तो इट इज नॉट गुड। तो तभी हम लोग जूस वगैरह या हल्का खाना प्रिफर करते हैं, करें, लाइक व्हेन आई वाज एट देहरादून, जब मैंने बताया था, तो वहां पे बहुत हैवी फूड्स हाँ ठंडी के मौसम में सब हाँ ऐसा, बट दैट इफ यू कंपेयर टू साउथ इंडिया इट इज टोटली डिफरेंट। हाँ उधर इडली सांभर ये सब। हाँ, तो ये सो खाने पीने का भी जो कल्चर है ना, ये वहां पे क्लाइमेट वगैरह पे बहुत डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट इजी टू शिफ्ट सडनली फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। पीपल कैन चेंज हाँ बट इट विल टेक टाइम, है ना। हम्म, अभी अचानक से सपोज बोला गया कि यू गो एंड शिफ्ट टू चाइना, तो क्या हो जाएगा? अभी नहीं होगी। ओके, तो यू जाना नो ही वेरी नहीं है। वेल, तो यू नो वेरी वेल, राइट, कितना डिफरेंट है, तो वहां के कल्चर के हिसाब से दे आर यूज्ड टू इट, बट वी कैन नॉट चेंज दैट हाँ मच। ठीक है, अभी, चेंज दैट मच क्या हो ही नहीं सकता। हाँ, अभी जैसे न्यूयॉर्क केस आई नो कि तू नॉनवेज खाती है, हाँ बट उसमें भी एक हाँ लिमिट है, सारे नॉनवेज मतलब कोई भी हाँ जानवर तो नहीं खाएगी। हाँ इवन वेजिटेरियंस भी कोई भी प्लांट मटेरियल तो नहीं खा हाँ सकते, इट हाँ मैटर्स। so that's what, when it comes to diet and all, it there is a lot of diversity. ओके, हम्म, तो अल्टीमेटली उसका बेयरिंग क्या है कि जो भी हम खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं सेल के अंदर, आफ्टर डाइजेशन इट इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच इज प्रोड्यूस्ड, एंड दिस सबस्ट्रेट इज एक्टेड अपॉन बाय ऑक्सीजन, एंड दीज आर द टू आउटकम्स। तो सेल को क्या चाहिए? एटीपी, बिकॉज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन। जो भी एक्टिविटीज हम डेली लाइफ में करते हैं, फिजिकल वर्क हो या नहीं भी हो, ओके, इट्स लाइक जैसे एटीपी एनर्जी सिर्फ हाथ पैर चलाने के लिए तो नहीं होते, द हार्ट इज कॉन्स्टेंटली बीटिंग, द स्टमक इज कॉन्स्टेंटली डाइजेस्टिंग, द ब्रेन इज कंटिन्यूअसली थिंकिंग, द lungs are continuously breathing, kidneys are constantly filtering,
तो ये सारे एक्टिविटीज जो चल ही रहे हैं ना, अनलेस एंड अनटिल अ पर्सन इज कमिंग टू एन एंड, तो इन सारे एक्टिविटीज के लिए एटीपी इज कॉन्स्टेंटली नीडेड. Okay, that is why respiration is extremely important for a cell. So it is applicable for every living organism. ठीक है, प्लांट्स में भी जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो रेस्पिरेशन होगा तो फोटोसिंथेसिस भी होगा. ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन, ठीक है, रेस्पिरेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस, है ना, लास्ट टाइम बताया था एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक. So we call respiration as catabolic. Why? मेटाबॉलिज्म की. कैटाबॉलिक का मीनिंग क्या है? हाँ, कैटाबॉलिक का मीनिंग अलग है, वो रिलेटेड है उससे. क्या मीनिंग है कैटाबॉलिक का? According to this reaction we can call it catabolic, but एक और वर्ड आता है रेस्पिरेशन के लिए जो इसके थोड़ा आधा टॉपिक होने के बाद मैं बताता हूँ. एम्फीबोलिक भी बोलते हैं उसको. We'll come to that once again, but for now you can understand it is a catabolic reaction. कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक में क्या डिफरेंस है? यू नो इट, अभी अभी लास्ट टाइम बताया था. कैटाबॉलिक का मतलब है इट इज अ ब्रेक डाउन या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस. Okay, when a bigger compound is broken down into smaller ones. बट वो एनाबॉलिक का था ना. हाँ, एनाबॉलिक इसका उल्टा. डिस्ट्रक्टिव. एनाबॉलिक मतलब कंस्ट्रक्टिव या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ओके, ये कैटाबॉलिक है, ब्रेक डाउन. अभी ये रिएक्शन को ध्यान से देख. ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स. इसको मैं एग्जैक्टली रिवर्स कर देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को अगर मैं रिएक्टेंट्स बनाऊं एंड द प्रोडक्ट्स यू आर गेटिंग एज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो दैट इज नथिंग बट फोटोसिंथेसिस. तो रेस्पिरेशन का जो एग्जैक्ट रिवर्स है वो फोटोसिंथेसिस है. गेटिंग इट? इसलिए प्लांट्स के सेल्स में यू कैन इमेजिन कि व्हेन दे डू फोटोसिंथेसिस दे आर एबल टू गेट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बोथ. तो वो जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, वो खुद यूज कर रहे हैं अपने ही रेस्पिरेशन के लिए टू सम एक्सटेंट, व्हिच एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट डू. ओके, तो दैट इज व्हाई अगर कैटाबॉलिक एनाबॉलिक का एग्जांपल समझना है तो कैटाबॉलिक का एग्जांपल है रेस्पिरेशन, एनाबॉलिक का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस. समझा कैटाबॉलिक का मतलब? ओके, एंड रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, एक और वर्ड याद रखना है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एक्सर्गोनिक प्रोसेस. इसका ऑपोजिट टर्म मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया था. फोटोसिंथेसिस को हमने बोला था एंडरगोनिक प्रोसेस. रेस्पिरेशन को बोलते हैं एक्सर्गोनिक. क्या मीनिंग है इसका? वही क्या? ब्रेक डाउन. नहीं, कैटाबॉलिक या डिस्ट्रक्टिव मतलब, एक्सो का मतलब बाहर, करेक्ट. तो बाहर क्या? ऑर्गेनिक, बाहर. एंडोगोनिक मतलब वो सेल्स के अंदर हो रहा है रिएक्शन. तो ये भी सेल्स के अंदर ही हो रहा है. रेस्पिरेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस आउटसाइड द सेल. ओके, सी कैटाबॉलिक का मतलब है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कि ब्रेक डाउन हुआ किसी मॉलिक्यूल का. ठीक है. एक्सर्गोनिक का मतलब है एनी सच रिएक्शन वेयर एनर्जी इज गिवन आउट. ओके, एंडरगोनिक का मतलब है अ रिएक्शन वेयर एनर्जी इज यूज्ड. फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के, आई मीन ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए
ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी जो है वो लिबरेट हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड एक्सर्गोनिक प्रोसेस। समझा? ओके, तो इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाए तो इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये याद रखना। एंड टू सम एक्सटेंट अगर देखा जाए तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, बिकॉज ग्लूकोज का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, वी कैन से दैट, बट ऑक्सीडेशन बोलना ज्यादा बेटर है because oxygen is getting added. That is why we say glucose is oxidized in respiration. ठीक है, अब ये जो रिएक्शन मैंने बताया, I have told you with respect to glucose, but every time whenever respiration takes place, is it always glucose only? Yeah, it can be something else. फैट्स भी हो सकता है। Exactly, yes. Because मतलब फैट्स का lipids। भी रेस्पिरेशन होता है, लिपिड्स का ब्रेकडाउन से फैट्स, एंड फैट्स के ब्रेकडाउन से फैटी एसिड्स। ओके, तो फैटी एसिड्स कैन आल्सो बी अ सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, बट ये जो सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है रेस्पिरेशन में, दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, एंड द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। तो पहले हम लोग यही देखेंगे, कंसीडर करके चलते हैं कि मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो ग्लूकोज है, एंड उसका पूरा रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है वी विल सी दैट नाउ। बट ये बेसिक बैकग्राउंड समझा अच्छे से, रेस्पिरेशन का कंसेप्ट क्लियर है प्रॉपरली? ठीक है, ओके। नाउ लेट्स गो टू द टेक्स्ट बुक। यू नो वेरी वेल कि रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर देयर। कौन सा? एरोबिक और एनारोबिक। एग्जैक्टली, यस, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन, and anaerobic respiration is also called anoxybiotic respiration. Okay, screen पे टेक्स्ट बुक दिख रहा है? Okay, ठीक है। Now aerobic and anaerobic में the main difference between both of them, what is that? एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन एनारोबिक यूज में होता है, ऑक्सीजन यूज होता है और एनारोबिक में नहीं होता। exactly. So respiration which requires oxygen is aerobic, and respiration sometimes can take place without oxygen, that is anaerobic. एवोल्यूशन के टाइम पे यू कैन इमेजिन कि लिविंग सेल्स जब बने तो कुछ भी करके रेस्पिरेशन तो करना ही था, क्योंकि वही एक सोर्स है जिससे एटीपी एनर्जी मिलता है। बट एवरी टाइम अराउंड अ लिविंग सेल ऑक्सीजन मे नॉट बी अवेलेबल, जैसे इन द केस ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स, तो उसमें ऑक्सीजन कभी कभी नहीं मिलता उनको, तो उनमें वो एडेप्टेशन आ गया कि बिना ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी के भी रेस्पिरेशन तो करके ही रहेंगे, भले उसमें कम एटीपी मिलता हो, बट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट, इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन भी चलता है। ओके, डज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स? यस, इन कहाँ पे? टिश्यूज, विच टिश्यू? मसल्स। मसल सेल्स, करेक्ट। नॉर्मली नहीं होता है, अंडर एक्सट्रीम नॉर्मली नहीं कंडीशंस, होता हाँ, है ना। सो व्हेनेवर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, तो अभी एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों अगर देखा जाए तो दोनों के स्टेप्स अलग अलग हैं, बट पहला स्टेप जो है वो दोनों का वो सेम है। ओके, अब ये बता, सेल के अंदर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल द रेस्पिरेशन, ऑल द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, फिर कब साइकिल्स में होता था। हाँ, अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्या था? साइटोप्लाज्म। यस, सी रेस्पिरेशन जो है ना, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, उसका जो पहला स्टेप है वो कॉमन है दोनों में, एंड दैट इज ग्लाइकोलाइसिस।
ओके ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, दिस स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। हाँ ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट्स है, ये जब पाथवे होगा ग्लाइकोलाइसिस का, तो देयर आर प्रोडक्ट्स कॉल्ड पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड। ये जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दिस विल कंटिन्यू विद आइदर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यू करेगा तो इट कंटिन्यूज इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंटिन्यू करेगा तो देन दिस पायरुविक एसिड विल एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड एरोबिक रेस्पिरेशन विल कंटिन्यू देयर। ठीक है, तो वी विल सी दैट स्टेप वाइज। ओके, तो अभी सबसे पहले एटीपी के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया, यू नो व्हाट इज एटीपी नाउ। ठीक है, बट एटीपी का जो फॉर्मेशन है सेल के अंदर, वो बनता है एटीपी। ओके, जैसे मैंने एक रिएक्शन बताया कि एटीपी के ब्रेकडाउन से यू आर गेटिंग एडीपी एंड आईपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये एटीपी का ब्रेकडाउन से मिला। सिमिलरली द अदर वे अराउंड, कि सेल के अंदर एडीपी और आईपी भी रॉ मटेरियल बन के रहते हैं कई बार। तो अगर नया एटीपी बनाना है तो एडीपी और आईपी को ज्वाइन करो एंड यू गेट एन एटीपी मॉलिक्यूल। ओके, तो एडीपी एंड आईपी के ज्वाइनिंग से जो एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो सिंपली फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ओके, तो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस जो है वो 3 टाइप के होते हैं, वन ऑफ विच यू हैव लर्नड इन फोटोसिंथेसिस। यू रिमेंबर फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स obtained from the light that were used, ओके, एंड उसको यूज करके एडीपी आईपी को ज्वाइन करके एटीपी मॉलिक्यूल बना, इसीलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन। सेकेंड टाइप इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब इट इज अ डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी, कि किसी सबस्ट्रेट में से फॉस्फेट ग्रुप को निकाला, एडीपी को ज्वाइन कर दिया एंड एटीपी बना दिया, इसीलिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एंड थर्ड टाइप इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि किसी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड उस ऑक्सीडेशन में जो व्हाट यू कैन से रॉ मटेरियल निकल रहा है, जो एनर्जी निकल रहा है ऑक्सीडेशन से, वो एनर्जी को यूज करके एडीपी आईपी को ज्वाइन करके एटीपी बनाते हैं, देन इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यू हैव टू रिमेंबर फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एंड उसके 3 टाइप्स। ओके, फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। समझा तीनों के बीच में डिफरेंस? ओके, एंड एटीपी जब बन जाता है, एंड देन इन द फ्यूचर व्हेन दैट एटीपी इज रिक्वायर्ड बाय द सेल, बिकॉज दैट इज द एनर्जी करेंसी, तो एटीपी को यूज करना है मुझे, तो देन द एटीपी मॉलिक्यूल इज हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। तो ये वर्ड्स याद रखना है, बिकॉज दिस विल कम अगेन एंड अगेन इन दिस लेसन। तो व्हेन यू से एटीपी हाइड्रोलिसिस, नाउ यू नो द मीनिंग, breakdown of ATP to get ADP and IP. Phosphorylation means joining of ADP and IP to form ATP. ऐसे एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखना, ठीक है? समझा यहां तक अच्छे से? एंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मीनिंग समझा? द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ओके, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट विच इज ग्लूकोज। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज के अलावा अगर दूसरा कोई सबस्ट्रेट है तो क्या होता है? वी विल सी दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन। ओके, सो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, एंड दिस इज कैरिड आउट बाय मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
and then very few cells like our muscle cells and all under certain situations. तो anaerobic respiration जो process हो रहा है, it is also called as fermentation. This is a common word, you know, है ना? fermentation से क्या क्या products बनते हैं? Wine. हाँ, direct wine. Yes, ethyl alcohol. है ना, ethyl alcohol, and then उसके अलग अलग concentration से you are getting different alcoholic beverages. One of them is wine. Okay, then you have rum, whiskey, vodka, etc. जो बनते हैं, right? एकदम ठंड लग रही है, हाँ? Okay, so cells में जब respiration हो, anaerobic respiration हो रहा है, so that is fermentation. So we will see the process of fermentation first. Now this is a process which is very commonly used by us in our daily life also. लेकिन घर में अगर इडली डोसा बनते हैं तो we are practicing what? Fermentation. दूध में से दही बनते हैं, lactic acid. So that is nothing but fermentation, है ना? And you directly went to the example of wine. Very good. Okay. तो अभी anaerobic respiration देखते हैं. Respiration point of view, जब ये process हो रहा है, okay, तो entire anaerobic respiration is not fermentation. Okay, उसका एक part है fermentation. But जो सबसे पहला step है anaerobic respiration का, which is called also common to aerobic respiration, that is glycolysis. Okay, so first we will see the entire details of glycolysis. आज सिर्फ glycolysis कर लेते, next time we can continue with the other part. या anaerobic respiration complete कर सकते पूरा, ज्यादा नहीं है उसमें. Glycolysis के बाद fermentation के reaction देखने से, तो anaerobic will get over पूरी तरह से, है ना? Okay, so talking about glycolysis now. So glycolysis basically क्या है? See, the word itself is telling you the meaning. Glyco का मतलब है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, एंड लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन. तो glycolysis, when you say, it is a series of reactions that are taking place, okay, which involves breakdown of the glucose molecule. At the end of this series of reactions, you are getting 2 molecules of pyruvic acid. So one glucose molecule undergoes complete breakdown across a series of reactions. You get 2 molecules of pyruvic acid. That is glycolysis. तो अभी ये जो reactions हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या याद रखना है? You have to remember every step. पूरा पाथवे अच्छे से याद रखना है, जैसे फोटोसिंथेसिस हमने लर्न किया था वैसे. And in every step, you should know what is the reactant, what are the products, how many carbon atoms are there in every step, कहीं पे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Okay, what is the addition part, कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं या NaDH2 ऐड हो रहा है या फॉस्फेट ऐड हो रहा है या समथिंग इज बीइंग रिमूव्ड, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है या एनी अदर कंपाउंड इज बीइंग रिमूव्ड और नॉट, वो हर स्टेप का याद रखना है. एंड एवरी स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय अ पर्टिकुलर एंजाइम. वो एंजाइम का नाम भी याद रखना. along with that number of molecules. ऐसे करके पूरा याद रखना है. Then you will be able to remember the pathway easily. ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है what are the series of reactions. Okay, secondly, number of molecules of each. Thirdly, number of carbon atoms in each. Fourth one, enzyme responsible for the catalysis of each reaction. हर step का अपना अपना enzyme है. Okay, like that. And fifthly, you can understand any other byproduct, carbon dioxide, water, phosphate or any other. या किसमें phosphorylation हो रहा है, किसमें hydrogenation हो रहा है, किसमें dehydrogenation हो रहा है, hydrolysis हो रहा है, ये सब याद रखना. That way you have to remember the pathway. Now this glycolysis, what you say, ये भी याद रखना है कि it occurs in the cytoplasm of the cell. इसीलिए it is common for aerobic and anaerobic, because cytoplasm तो हर living cell में होते हैं, right? So entire process of glycolysis takes place in 2 phases. One is
preparatory phase and the other one is payoff phase. ठीक है, तो इसके बाद डायरेक्टली लेट्स सी द पाथवे, उसी में से बताता हूँ मैं. तो यू कैन सी दिस स्मॉल पाथवे इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, तो यहाँ पे देखना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, नाउ यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 6C and 1M. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? 6 carbon, करेक्ट, 1 molecule. एग्जैक्टली. One molecule of glucose containing 6 carbons in it. ऐसे याद रखना. ठीक है, तो ग्लूकोज से शुरुआत हो रहा है बिकॉज इट इज ग्लाइकोलाइसिस. तो सबसे पहला स्टेप व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो Mg+2 लिखा है दैट इज अ कोफैक्टर. नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस. कोफैक्टर, कोएंजाइम, वी हैव लर्न दैट इन बायोमोलिक्यूल्स, है ना. तो Mg+2 is the cofactor for the enzyme which is catalyzing this reaction, which is hexokinase. अभी एंजाइम के नाम में जब भी काइनेस करके आएगा, इट इज एसोसिएटेड विथ फॉस्फोराइलेशन. तो पहले ही स्टेप में क्या हो रहा है, यू कैन सी ATP ADP, एरो मार्क पॉइंटिंग टुवर्ड्स ADP. मतलब क्या, इस स्टेप में ATP का ब्रेकडाउन हुआ है, दो इट इज द रेस्पिरेशन गोइंग ऑन. ओके, जिसका मेन एम है ATP प्रोडक्ट बनाने का, बट यहाँ ग्लाइकोलाइसिस के पहले स्टेप में ATP यूज हो रहा है. गेटिंग इट? तो ATP मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन एंड उससे जो फॉस्फेट निकलेगा वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ऐड कर दे. तो यू आर गेटिंग व्हाट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ओके, केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, हाँ सिखा रहे हैं. है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट. हाँ. तो उसके हिसाब से व्हेन यू से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इट मींस व्हाट, वो 6 कार्बन का ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल है, बट हाँ. उसका जो 6th कार्बन एटम है उस जगह पे एक फॉस्फेट ऐड हो गया. तो 6 phosphate denotes the position of the phosphate in the glucose molecule. एंड ये फॉस्फेट कहां से आया, ATP के ब्रेकडाउन से. एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज hexokinase. Why it is hexo? Because it is a 6 carbon compound. ठीक है, तो अब ये जो इस स्टेप में कोई भी कार्बन नंबर कम नहीं हुआ, 6 का 6 ही रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम नहीं हुआ, तो दैट इज वाई 6C1M रिमेन्स द सेम. सिर्फ एक फॉस्फेट का एडिशन हुआ है बस. ठीक है, अभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज का आइसोमर इज फ्रक्टोज. दोनों का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट. तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हो जाता है, कन्वर्शन. तो देयर इज नो अदर चेंज इनवॉल्व, सिर्फ आइसोमराइजेशन. ओके, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट gets converted to fructose 6 phosphate. That is why 6 carbon remains 6 carbon, 1 molecule remains 1 molecule. No other ATP required, no water molecule, no carbon dioxide, nothing. ये आइसोमराइजेशन वाला स्टेप है. तो यहाँ पे एंजाइम क्या आएगा, इट इज फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज. ओके, फॉस्फोहेक्सोस, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन कंपाउंड ना, आइसोमरेज, बिकॉज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज. दैट इज योर सेकेंड स्टेप. हर एक स्टेप का ध्यान से सुन. फर्स्ट और सेकेंड स्टेप क्लियर है प्रॉपरली? यस. ठीक है, सो नाउ यू हैव गॉट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 1 मॉलिक्यूल चल रहा है अभी भी. अब और एक ATP मॉलिक्यूल को यूज कर रहे, देखो. Same like the first step, ATP is getting converted to ADP and Mg+2 is the cofactor. And here now the enzyme involved is phosphofructokinase. Okay, पहले स्टेप में क्या था, हेक्सोकाइनेज.
काइनेस मतलब एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, यहां पर भी काइनेस मतलब एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, बट फॉस्फोफ्रक्टो बिकॉज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, उसमें से उसमें एक और एटीपी फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग अ कंपाउंड कॉल्ड फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अभी फ्रक्टोज जो है, इफ आई शो यू दिस वे, कि सपोज फ्रक्टोज का कार्बन मैं ऐसे दिखाता हूँ 1, ओके, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, जगह नहीं था इसलिए ऊपर लिखा है, तो दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। अभी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब था, तो देयर द फॉस्फेट वाज अटैच्ड ओनली टू द 6 कार्बन, 6th कार्बन एटम, दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके, अभी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट मतलब देयर इज अनदर फॉस्फेट एडेड टू द फर्स्ट कार्बन एटम आल्सो, तो 2 फॉस्फेट है इसीलिए डाइफॉस्फेट। तो ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट किधर से आया, एक और एटीपी के ब्रेकडाउन से। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, हर एक रिएक्शन ध्यान से समझ जा। ठीक है, ग्लूकोज से स्टार्ट करके पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, फिर उसका आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब उस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो फॉर बोथ द स्टेप्स देयर वाज 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी व्हिच वाज यूज्ड अप, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी अभी तक यूज कर चुके, एंड यू गॉट दिस कंपाउंड। ओके, 6 कार्बन 1 मॉलिक्यूल, एंड एंजाइम का नाम याद रखना है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, अभी तो यू हैव गॉट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब यहां पे एक स्प्लिटिंग अप हो जाएगा कि 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल कंपाउंड विल ब्रेक डाउन into 2 different molecules of 3 carbon each. Okay, so you are getting one compound as glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, जिसको PGAL करके भी बोल सकते हैं, phosphoglyceraldehyde भी बोलते हैं, but here whatever it is written you can just remember that glyceraldehyde 3-phosphate, that is the first compound जो 3 कार्बन का है, एंड उसके साथ बनेगा दूसरा कंपाउंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट called DHAP, that is another compound of 3 कार्बन। तो जो एक कार्बन 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल था, अब उसका ब्रेकडाउन हो गया into 2 different molecules of 3 कार्बन each, एंड उसके लिए जो एंजाइम है that is एल्डोलेज। ओके, एल्डोलेज के वजह से ये ब्रेकडाउन हो गया, बट जैसे ही वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं, see what else is happening, you can see the reversible arrow marks here, कि ये दोनों जो कंपाउंड बने 3 कार्बन वाले, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। ओके, तो जैसे ही पहले 2 अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, बट बिकॉज ऑफ द आइसोमराइजेशन, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की वजह से ये जो DHAP है that also gets converted to glyceraldehyde 3-phosphate the first time. इसीलिए यू कैन सी ओवर हियर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate का 2 मॉलिक्यूल्स करके लिखा हुआ है, बिकॉज उसका आइसोमर भी इसी में कन्वर्ट हो गया। समझा ये पार्ट? हाँ। ठीक है, कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का 6 कार्बन कंपाउंड 1 मॉलिक्यूल एल्डोलेज के वजह से ब्रेकअप हो गया 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स। ओके, PGAL पागल, DHAP ढप। ओके, तो धप को धप नहीं रहना था, वो भी पागल बन गया। गेटिंग इट? ओके, तो यू आर गेटिंग ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate, पागल के ही 2 मॉलिक्यूल्स। ये सब याद रखने के लिए, एग्जाम में पागल मत लिख। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, हमारे टीचर ने ऐसे याद रखने के लिए बोले थे। ओके, जो पागल है वो धप मारते हैं, जो धप मारते हैं वो पागल है। ठीक है, 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स। तो ब्रेकअप वाले स्टेप में एंजाइम इज एल्डोलिस, एंड आइसोमराइजेशन वाले स्टेप में एंजाइम इज ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज।
अच्छी तरह समझा यहाँ तक? हाँ इजी है, लाइक इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट टाइम देख रही है करके ऐसा लगेगा, बट वंस यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट इज वेरी इजी। हाँ, मतलब वो डिवाइड होने से पहले ही भी था। हाँ, यहाँ पर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो अभी हाँ यहाँ तक जो हमने रिएक्शंस देखे, ओके, दिस इज जो मैंने ऊपर बताया था ना कि ग्लाइकोलाइसिस के दो स्टेप्स है, एक है प्रिपरेटरी फेज हाँ। एंड दूसरा पे ऑफ फेज। तो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक था, ये प्रिपरेटरी फेज था, बिकॉज यहां तक दो एटीपी मॉलिक्यूल यूज किए। अभी इसके आगे क्या होगा? पे ऑफ, कि अल्टीमेटली रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं कि मुझे एटीपी चाहिए, बट मैंने पहले ही दो एटीपी यूज कर लिया, उधार ले लिया, तो उधार को अभी सूद समेत चुकाना है। तो remaining part of glycolysis is where the ATP molecules will be produced, and that is your payoff phase. Any doubts in this part? नो। Okay, याद रहेगा ना अच्छे से? हाँ। लिख के प्रैक्टिस करना है तभी याद रहेगा अच्छे से, ठीक है? ओके, सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसके आगे टिल द एंड जो पायरुविक एसिड बन रहा है तब तक वही है, 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल, वो अब चेंज नहीं होगा। Okay, so now what is happening in the next step? There is something called dehydrogenation taking place. Dehydrogenation, D का मतलब है रिमूवल, तो इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, एंड वो जो हाइड्रोजन इस सबस्ट्रेट से निकलेगा वो ऐड हो जाएगा NAD+ को, तो दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो ये तो रिसाइकल होते रहता सेल में। NADH2 जो है वो कोएंजाइम है, ओके, दैट इज ऑल्सो हाइड्रोजन डोनर। तो NAD+ को हाइड्रोजन मिल गया, वो NADH2 बन के निकल गया। ओके, नाउ हियर Zinc+2, Zn+2 is the cofactor for this reaction. ओके, एंड H3PO4 का भी एडिशन हो रहा है फॉस्फोरिक एसिड का, तो एक और फॉस्फेट ऐड हो रहा है, बट नॉट फ्रॉम ATP, इट इज फ्रॉम H3PO4। तो यहाँ इस स्टेप में क्या क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, that hydrogen gets added to NAD+, NADH2 gets formed, which is a coenzyme, and that is recycled. तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, that is why enzyme is triose phosphate dehydrogenase. ऊपर वाले एंजाइम में भी देखना ट्रायोस फॉस्फेट ऐसे ही नाम था, इधर भी ट्रायोस फॉस्फेट, पर ऊपर आइसोमरेज नीचे डिहाइड्रोजनेज। ओके, Zinc+2 is the cofactor, एंड यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ना, तो दोनों मॉलिक्यूल के लिए एक एक, so that's why you can see 2 here also. ये एक एक पॉइंट ध्यान रखना। okay, Zinc+2 is utilized, at the end of which in this reaction you are getting 1,3 biphosphoglyceric acid. okay, phosphoglyceric acid को we write as PGA. तो 1,3 biphosphoglyceric acid you can write 1,3 dipga. तो एल्डिहाइड जो था अब वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इज नथिंग बट रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, बिकॉज हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना। समझा यहाँ तक? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला अल्टीमेटली? यू गॉट 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, जस्ट अ सेकंड। Okay, so you have understood this till here, 1,3 biphosphoglyceric acid. नहीं, वो हो गया। हाँ, है ना, यहाँ तक हो गया ना, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड तक। उसके नीचे तक भी हुआ ना? नहीं, ये नहीं हुआ, ये अभी करेंगे। ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो अभी क्या हो रहा है, देख इसके बाद
अब 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कि मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में दो पोजीशंस पे फॉस्फेट एडेड है 1 एंड 3, ठीक है। तो अब ये 1 एंड 3 पोजीशन पे जो फॉस्फेट है इसमें से एक पोजीशन का फॉस्फेट निकल जाएगा, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब कंपाउंड वही है, देखना, फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट, ओके। 1,3 बाई फॉस्फो था, यहाँ पे 3 फॉस्फो हो गया, मतलब 1 पोजीशन पे जो फॉस्फेट था दैट हैज बीन रिमूव्ड, एंड वो जो रिमूव हो गया वो ऐड हो जाता है एडीपी को। अब दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों में से एक एक फॉस्फेट निकला, तो दो अलग अलग एडीपी मॉलिक्यूल को ऐड हो गए एंड यू आर गेटिंग बैक 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। समझा? ठीक है। हाँ। तो यहाँ जो एंजाइम है, अगेन यू कैन सी द नेम इज काइनेज। तो एटीपी का ब्रेकडाउन हो या एटीपी का फॉर्मेशन हो, नेम ऑफ द एंजाइम मोस्टली इज काइनेज। ऊपर भी काइनेज ही था ना, ठीक है। So here it is phosphoglycerate kinase. That's the name of the enzyme in which you are getting back 2 ATP molecules. तो यहाँ पे preparatory phase में 1 molecule of 6 carbon glucose, उसका यहाँ तक 2 ATP molecule यूज हुए थे, और वो दोनों ATP molecule यहाँ पे वापस बन गया and given back to the cell. Same Mg+2 is the cofactor. ठीक है। तो यू गॉट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स। अभी क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ओके, जो 3 कार्बन कंपाउंड है उसके थर्ड पोजीशन पे जो फॉस्फेट है, अब वो थर्ड पोजीशन से शिफ्ट होकर इट विल कम टू द सेकेंड पोजीशन। तो क्या मिल गया, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ओनली द शिफ्ट ऑफ पोजीशन, थर्ड पोजीशन से सेकेंड पोजीशन। इसीलिए इसका एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। इट इज ओनली अ शिफ्ट इन द पोजीशन। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट का क्या मिल गया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। नो अदर थिंग इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। समझा यहाँ पे? यस। ठीक है। सो अल्टीमेटली हियर यहाँ पे व्हाट यू आर गेटिंग, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इस 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेट, अभी हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, हम लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, पानी का लॉस हो रहा है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, 2 molecules of water are removed, okay, and the enzyme involved over here is enolase, removal of water molecule. Again cofactor is Mg+2. तो एनोलेस एंजाइम के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन का होना, तो फ्रॉम 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड you are getting 2 phosphoenol pyruvate, because ultimate requirement क्या है, pyruvic acid बनाना है। that is why ऐसे सीरीज में हो रहे स्टेप्स। 2 phosphoenol pyruvate, 3 carbon 2 molecules. okay, now this is the payoff phase we are looking at. payoff का मतलब क्या है कि preparatory phase में 2 ATP molecule breakdown किए थे, यूटिलाइज कर लिए थे, अब उसको वापस देना है, तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी का तो यहाँ बना के दे दिए, बट अभी बाकी का जो इंटरेस्ट है वो भी देना है। तो दैट इज 2 ATP, 2 ADP to 2 ATP अगेन, बट 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में से फॉस्फेट निकल जाएगा, गेटिंग एडेड टू ADP pyruvate kinase. So again 2 more ATP molecules are given out, same Mg+2 is the cofactor, and you are getting the final product of glycolysis, that is pyruvic acid, which is again a 3 carbon compound, 2 molecules. तो यहाँ पूरे ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो प्रिपरेटरी फेज में, ओके, कंसीडरिंग 1 molecule of glucose in the beginning, यहाँ पे 2 ATP molecule यूज हुए, ओके, एंड पे ऑफ फेज में 4 ATP molecule बन गया। So what is the net gain of ATP from 1 glucose molecule? 2 2 molecules. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे।
कि फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज द नेट गेन ऑफ एटीपी इज 2. ओके, एंड ग्लाइकोलाइसिस में ओवरऑल क्या हो रहा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अंडरगोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन up to a certain stage, okay, in the cytoplasm across a series of reactions, at the end of which you are getting 2 molecules of a 3 carbon compound, that is pyruvic acid. ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखा हुआ है, देखो कि ग्लूकोज 2 ATP 2 IP 4 ADP 2 NAD प्लस, मतलब ये रिएक्टेंट्स है. ओके, यहाँ पे देखना ये 2 IP जो यूज भी हुआ है, बिकॉज इसके वजह से 4 ATP बना है इधर, है ना, IP और ADP ये दोनों ज्वाइन करके ATP बना भी है ना, एंड यू कैन सी 2 NAD ओवर हियर, ये भी यूज किया है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर. तो एट द एंड व्हाट यू आर गेटिंग 2 molecules of pyruvate 2 ADP but 4 ATP. ओके, 2 NADH2 जो यहाँ मिला है, ये देखो, हाँ करेक्ट, एंड H प्लस भी निकल रहे हैं अलग से, इधर ही है, एंड 2 molecules of water is also given out. ओके, ऐसे करके इसका पूरा ओवरऑल रिएक्शन लिखा जा रहा है कि 2 ATP आर यूज्ड अप बट 4 ATP आर प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, ग्रॉस एंड नेट. ओके, तो ग्रॉस गेन ऑफ एटीपी अगर पूछा जाए तो 4 ATP है, क्योंकि पूरे ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATP बन रहे. बट नेट गेन ऑफ एटीपी अगर पूछा जाए तो 2 ATP, बिकॉज 4 में से 2 यूज हो गया. समझा? ठीक है, ये रिएक्शंस, ये पाथवे क्लियर है. ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना. अभी यहाँ पे देख, हाँ एक्चुअली, बट पूरा रिएक्शन वाइज नहीं था ना, यू आर हैविंग इट इन ब्रीफ. अभी इतना डिटेल में अभी यू आर लर्निंग इट, है ना. तो ये लिख के प्रैक्टिस करो, इसलिए हर एक स्टेप में एक एक चीज का क्या सिग्निफिकेंस है वो समझ गई ना, इट इज वेरी इजी. ओके, एंड as far as the co-factors are concerned, मैक्सिमम तो यू आर गेटिंग Mg+2 as the co-factors. सिर्फ ये एक ही रिएक्शन है जहाँ पे Zn, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयंस, यस, Mg+2, एंड यहाँ पे Zn+2, Zn+2, ये एक ही रिएक्शन में जिंक है, बाकी सब जगह जहाँ कोफैक्टर्स है Mg+2 है. ऐसे एक एक पॉइंट को सेग्रीगेट करके याद रख. ठीक है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, अभी जो ग्लाइकोलाइसिस है विच इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, इट इज ऑल्सो अंडर टाइट कंट्रोल. इसका मतलब क्या है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेल के अंदर ग्लूकोज है, ठीक है, बट ग्लाइकोलाइसिस करने की जरूरत नहीं. इट्स लाइक जैसे अभी जो मौसम चल रहा है, ओके, यू आर हैविंग अ सीलिंग फैन इन योर रूम, बट बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन यू डोंट वांट द सीलिंग फैन टू वर्क. तो सीलिंग फैन को पूरा उखाड़ के निकाल के रखते हैं क्या? नहीं, बंद कर देते हैं, तो देयर इज अ स्विच, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं. हाँ, ओके, तो देयर इज अ स्विच बाय व्हिच यू आर कंट्रोलिंग. जब एकदम गर्मी का मौसम आएगा तो यू विल पुट ऑन द स्विच एंड यू विल इंक्रीज द स्पीड आल्सो. करेक्ट. सेल के अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस कब करना है, कितना फास्ट करना है, ये सब भी रेगुलेटेड होते हैं. ओके, तो वो डिपेंड करता है सेल को कितना एटीपी चाहिए. कभी कभी उतना एटीपी का जरूरत नहीं पड़ता है, तो ग्लाइकोलाइटिक रेट कंट्रोल इज पॉसिबल. तो दैट डिपेंड्स अपॉन एटीपी कंजम्पशन, ओके, NADH2 रीजनरेशन. बिकॉज अगर कभी कभी क्या हो जाता है, सेल के अंदर NADH2 का रीजनरेशन ज्यादा होता नहीं है ड्यू टू अदर फैक्टर्स. तो NADH2 भी होना चाहिए ताकि इसके आगे रिएक्शन बढ़े. तो अगर ये कम पड़ गया तो ग्लाइकोलाइसिस अफेक्ट हो जाता है. ओके, और समटाइम्स इवन दिस फर्स्ट एंजाइम, हर एक स्टेप पे जो एंजाइम है वो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स भी उतने होने चाहिए सेल के अंदर. किसी भी जगह पे अगर कोई एंजाइम नहीं रहा तो वो रिएक्शन वहां स्लो पड़ गया. And especially the first enzyme is very significant, hexokinase. Okay, तो hexokinase है, PFK1, pyruvate kinase, ये सब भी डिपेंड करते हैं. और ये सारे एंजाइम्स का प्रोडक्शन कंट्रोल होता है अपने हार्मोन से.
We have glucagon secreted from the pancreas. Okay, insulin secreted by the pancreas and epinephrine secreted by adrenal glands. 12th में you are having control and coordination lesson, वहां पे hormones के बारे में पढ़ो, ठीक है? तो ऐसे करके पूरा कनेक्टेड है, चेन है, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस. तो ग्लाइकोलाइसिस का भी कंट्रोल जरूरी है. कई बार क्या हो जाता है कि सेल में ग्लूकोज रहेगा अच्छा खासा, बट ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस कराने के लिए जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर वो कम ज्यादा रहेगा तो ग्लाइकोलाइसिस गेट्स अफेक्टेड. एवरी रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो यहाँ पे देखना कि सेल्स लाइक एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स मतलब कौन से सेल्स? एरिथ्रोसाइट मतलब, एरिथ्रोस का मतलब है रेड, साइट मतलब सेल, तो इट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल. यस, ओके. एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल. रीनल मेड्यूला, रीनल का मतलब है किडनी. एक्सक्रीशन लेसन जब हम देखेंगे तो वी विल सी किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. तो अंदर वाले पोर्शन को मेड्यूला बोलते हैं. ओके, एंड द ब्रेन एंड द स्पर्म, these are some cells examples jahan pe the only source of energy is glycolysis. And for the sperm it is the fructose which is the respiratory substrate mainly, ठीक है? Similarly potato जैसे plant tissues जिसमें सिर्फ starch है. Now what is that starch? It is a complex polysaccharide. तो जब उसका breakdown होता है तो you get glucose. तो प्लांट सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल इज व्हाट? स्टार्च. एनिमल सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन. कि पहला जो न्यूट्रिएंट बनेगा वो ग्लूकोज होगा, बट वेदर इट इज अ प्लांट सेल और एनिमल सेल, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइदर स्टार्च और ग्लाइकोजन एंड इट विल बी स्टोर्ड. एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर जैसे ऑर्गन में स्टोर करके रखते हैं. सो लेटर ऑन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, so this glycogen is again converted back into glucose and then it is used up for respiration. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं glycogenesis, formation of glucose, formation of glycogen. Okay, glycogenolysis, breakdown of glycogen. याद है ये वर्ड्स? 10th में था, है ना? सिमिलरली जैसे ऑक्सीजन स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट है मसल्स में, दैट इज मायोग्लोबिन, याद है ना? तो रेड मसल्स जो होते हैं जिसमें मायोग्लोबिन ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू व्हाइट मसल्स. ओके, तो रेड मसल जो होते हैं दे कैन यूटिलाइज ऑक्सीजन स्टोर्ड इन मायोग्लोबिन टू कंटिन्यू द एनर्जी प्रोडक्शन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन. बट जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं, ओके, दे cannot utilize oxygen in a very fast rate as compared to the red ones. तो जब एक्सट्रीम फिजिकल वर्क होता है, when you get exhausted, जैसे हम अम्बिवली से टिटवाला चल के गए थे, ओके, तो what happened that time? White muscles they produce more of lactic acid. Okay, they temporarily switch over to anaerobic respiration. इसीलिए जो व्हाइट मसल्स होते हैं, ओके, इसलिए जो मसल्स में कंपैरिजन है रेड एंड व्हाइट के बीच में, रेड मसल्स का, रेड फाइबर्स का प्रोपोर्शन अगर ज्यादा रहेगा, सो दे आर फिजियोलॉजिकली बेटर एडेप्टेड फॉर इवेंट्स लाइक मैराथन एंड स्विमिंग, जहाँ पे मसल्स का यूज होता है, जो एथलीट्स होते हैं. दैट इज हाउ दे आर ट्रेन्ड. इसलिए जब भी हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह करते हैं तो ऑन डे 1 यू डोंट डू एवरीथिंग, ना? तो पहले हम वार्म अप करते हैं, so that all the muscle fibers are used once, then धीरे 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 उसका इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं, so that they get used to it. अगर day 1 में ही शुरू कर दिया एकदम तगड़ा एक्सरसाइज, you can understand what will happen, कि accumulation of lactic acid will take place which will be painful. Okay, तो ग्लाइकोलाइसिस पूरी तरह क्लियर है? ठीक है. अब glycolysis is also called as EMP pathway, याद है? ये भी याद रखना. हाँ. ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है, हाँ,
Why it is called EMP? हाँ EMP बात है. It was based on the three people who have discovered this pathway. The three scientists. से अभी हम लोग ऑन पेपर ये पूरा रिएक्शंस लिख के बता रहे हैं. Mg+2 है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकला, बट नोबडी कैन विजुअलाइज दिस रिएक्शन ना. अब हर स्टेप में एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये केमिकल स्टडीज से ही पता कर सकते हैं. तो दीज थ्री पीपल, एम्बडन, मेयरहोफ, पार्नास, याद आया? These three people have worked out. किसी ने ओवरनाइट ऐसे नहीं निकाला होगा ना कि चलो ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में करके. कौन से स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, कौन से स्टेप में एटीपी बन रहा है, बहुत सारा केमिकल स्टडीज लगता है ये एकदम कंफर्म करने के लिए. एंड दैट्स हाउ द एंटायर पाथवे हैज बीन वर्कड आउट. गेटिंग इट? जब पायरुविक एसिड बनेगा तो उसके ऊपर लेबलिंग तो नहीं किया होगा ना कि आई एम पायरुविक एसिड. नहीं. उसका केमिकल स्टडीज होगा, तब पता चलेगा कि यस दिस इज पायरुविक एसिड. लाइक दैट एट एवरी स्टेप इट हैज बीन वर्कड आउट. इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को बोलते हैं ईएमपी पाथवे. ठीक है, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दोस थ्री पीपल हु हैव डिस्कवर्ड इट. तो अभी जो पायरुविक एसिड बन गया, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, दिस बिकम्स स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्दर स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. अब यहां से डिसाइड होगा कि वेदर इट इज अंडरगोइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में जाना है तो इट विल कंटिन्यू फर्दर इनटू एसिटाइलेशन फॉलोड बाय क्रेब्स साइकिल. अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करना है तो इट इज नथिंग बट फर्मेंटेशन. तो बस ये 2 रिएक्शन समझ गए फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो साइटोप्लाज्म में ही कंटिन्यू होते हैं. तो व्हाट हैपेंस, सी, अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन किसी एनिमल सेल में हो रहा है तो देन द प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड. और अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन किसी प्लांट सेल में हो रहा है तो देन द प्रोडक्ट इज अल्कोहल, इथेनॉल. दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर. एंड ये जो फर्मेंटेशन वाला रिएक्शन है, देयर इज नो एटीपी फॉर्मेशन इन्वॉल्व हियर. ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड. तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या हुआ, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड मिला, ग्लाइकोलाइसिस हुआ. अब इस पायरुविक एसिड का what will happen, it will undergo reduction. 3 कार्बन कंपाउंड ही मिला है. NaDH2 is your reducing agent. You can see the molecular formula CH3COCOOH. अब उससे बना है लैक्टिक एसिड CH3CHOH. एंड NaDH2 से जो H निकला है वो NAD+ बन के रिसाइकल हो जाएगा. So there is no change in the carbon number. Okay, 2 molecules का 2 molecules ही मिलेगा. That is your lactic acid. Okay, so जो lactobacillus, you remember that bacteria? है ना, बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा था. तो वो लैक्टोज को यूज करते हैं. लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड. अब लैक्टोज के ब्रेकडाउन से बनेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, 2 मोनोसैकेराइड्स. That glucose is used up by the bacteria. ये वाला fermentation करते हैं after glycolysis, and that is the lactic acid produced. So this is the reaction responsible for giving you that curd. Next time जब भी दही खाएगी तो reaction याद रखना है, ये वाला reaction किया था bacteria. Getting it? Okay. Similarly, if you take up cells like the yeast, या अपने वाइन के जो वाइन बनाने के लिए जो होते हैं ना, ईस्ट वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें भी देखना सेम वे पायरुविक एसिड बन गया. अब इस पायरुविक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है. ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देयर इज अ डीकार्बोक्सिलेशन. सो जो 3 कार्बन कंपाउंड है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ 2 कार्बन कंपाउंड. एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा. ओके, तो यू गेट एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, you will get alcohol, ethanol, C2H5OH. तो alcoholic fermentation में there is a reductive decarboxylation. Lactic acid fermentation में there is only reduction. That you have to remember. Number of molecules doesn't change. 2 molecules का 2 molecules.
and here also there is no ATP formation, nothing at all. तो इसके वजह से what you get is your favorite wine. Got it? Yes. Okay. So anaerobic respiration is completely clear, no doubt. Yes. No. ठीक है. So we will stop here for now. Okay, respiration का introduction हाँ. हो गया, glycolysis हो गया. Okay, we have seen the location where this process takes place, and we have completed the Yes. discussion on anaerobic respiration. तो anaerobic respiration के concluding point क्या बोल सकते हैं कि whenever one molecule of glucose undergoes complete anaerobic respiration, the net gain of ATP is how many? 2. Yes. ये याद रखना है because next session when we will complete the other reactions, तो इसके बाद थोड़े calculations आएंगे. That time we will see the energetics of this. Okay. ठीक है? हाँ. ऐसे करते हैं. ओके, अच्छी तरह समझा. ये सब रिएक्शन याद रखना है, हाँ. प्रैक्टिस करना है. फाइन. आई थिंक 2 more sessions maximum and we can finish this. Okay. या एक सेशन में भी हो Okay. सकता है. लेट अस सी.